StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं वो बेहद ही खास मेहमान। आई गेस वो किसी पहचान के महताज नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को बताना चाहती हूँ हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री आलोक रंजन, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी। Welcome, sir, to StudyIQ, and we are very glad to have you today. And sir has recently turned an author also with his new book. So we'll discuss about that and also about his splendid journey that he has spent in bureaucracy. So welcome once again, sir, and congratulations on the new book. Thank you very much. Thank you very much for the welcome, and I really enjoyed talking with you. Yes. So people have looked up to you, people look up to you when it comes to be, when they look for role model in bureaucracy. So one of the names that comes at the top is Shri Alok Ranjan. How do you feel when you see a splendid career that you have spent almost in the bureaucracy, and now you're already you're retired as Chief Secretary, Government of UP? Yes. How is the feeling? Yeah, I retired as Chief Secretary of the Government of UP in 2016. And I had 38 years of service in the IAS, of which 33 years was spent in UP and 5 years in Government of India at Delhi. And I must say one thing, that I look back at my career with a lot of satisfaction, because I chose this career for certain reasons. And as I would like to inform you and the viewers also, that there was a difficult choice I had to make when I chose this career. You know, I had actually done my MBA from IIM Ahmedabad. So having done my MBA from IIM Ahmedabad, I had taken up a job also, campus placement. I was in a well-paid job in marketing area in Mumbai. And then I had to make a choice. I resigned from that job and then prepared for the IAS and wrote this examination, because I was looking for something, in life. I was looking for an opportunity to do public service. I was looking for an opportunity to make a direct impact on society, the problems that are facing the society, and to be able to work directly with that. That somehow was stimulating me. That was, at the back of my mind, and that is why I resigned my private sector job. And though many people thought that I'm wasting my IIM Ahmedabad, degree, but I don't think so. And when I look back, I don't regret even for one moment that I made this decision. I was fortunate to be selected my first attempt and got a rank also in All India rank, and was posted to UP cadre. And then the whole 38 years has been immensely challenging, immensely enjoyable, and immensely satisfying. That's all I have to say, because every day there was something new which came up, and every day, if one worked creatively and innovatively, you could do something to touch the life of the ordinary citizen, to make the quality of life better for the people. And as I've written in my first book, I think, which we had a discussion earlier on, making a difference, that was the motive, basically, to make a difference to society. So that kind of satisfaction I was able to get in my 38 days of service. And I'm happy, as you're saying, that if some of my colleagues, junior colleagues, look up to me as a role model, well, then I'm very happy, because it is the duty of the senior persons in the service to set an example for the juniors to follow, because that is how it is. That is how the orientation takes place. You look up to people above you and senior to you, and how they are behaving, how they are handling situations, how they are doing their governance, what about their integrity and honesty, and they see that and then they follow that. So that is, it's interesting that people are, recognizing the kind of work that I tried to do my best to do, and that gives me a lot of happiness. Sir, as you were defining your splendid career that you have spent in bureaucracy, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो शायद पहले भी हम डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन में निकल के आया था आपसे जब हम बातचीत कर रहे थे, तो you feel immense pleasure enjoying the bureaucracy as a career. Why do you suggest people should come in IAS? देखिए, IAS में आने के बहुत reasons हैं, I think, but one should not come for the wrong reasons. ये मेरा कहने का है. ये मैंने देखिए अपनी बुक में भी हाईलाइट किया इस पॉइंट को, कि if the motivation to come into the IAS is that I am looking for power, कि पावर मिल जाए बहुत सारी, या लोग जो हैं वो सल्यूट करेंगे, या पुलिस गार्ड मिलेगा, या रेड बीकन लाइट की कार मिलेगी, ओनली दैट मिलेगी, that is also an advantage is there, but that by itself should not be the reason. The power that you get, it should be to change the lives of the people for the better service करें, public service delivery करें, better implementation of government schemes करें, better utilization of public money करें, in the interest of the citizen. अगर ये आदमी करता है,
तो मैं समझता हूँ ये सही मोटिव होना चाहिए। जिसका अगर इंटरेस्ट ये है इन लाइफ दैट ही वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, दैट ही वांट्स टू डू पब्लिक सर्विस, अगर ये इंटेंशन है, ये मोटिवेशन है, तो उस व्यक्ति को या उस लड़के या लड़की को कोशिश करनी चाहिए सिविल सर्विस में आने के लिए। अगर ये मोटिव नहीं है, तब मैं समझता हूँ सिविल सर्विसेज देन इज नॉट द ऑप्शन फॉर हिम। देन दीस डेज देयर सो मेनी अदर करियर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, मीडिया में जॉब्स हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में जॉब्स हैं, देयर सो मेनी जॉब्स ऑल ओवर द प्लेस दैट यू कैन टेक अप। इट इज नॉट दैट नाउ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ एवेन्यूज फॉर एनीबॉडी। लेकिन अगर आपका ये है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, टू मेक अ डिफरेंस एज आई सेड, तब आप जरूर आईएएस करियर में आना चाहिए आपको। ये सर आपने इनिशियली भी अभी बताया कि बहुत सारे रीजंस आईएएस में आने के, लोगों का पैशन होता है सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना, बट जो इसकी प्रिपरेशन है दैट्स क्वाइट एग्जॉस्टिव, लेंथी, एंड हो सकता है अगर आपका एक बार नहीं हुआ देन यू हैव टू अगेन कम इनटू दैट साइकिल। कई बार वो साइकिल काफी लंबी हो जाती है, 5 साल 6 साल लग जाते हैं। वुड यू सजेस्ट इस केसेस में ऑल्टरनेट करियर्स होना चाहिए, बिकॉज दिस सीम्स टू बी अ लिटिल डाइसी सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल एक प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करते हैं। It is true. It is true that I have met many young boys and girls who have spent the best part of their youth in this preparation itself. कई ऐसे मिले जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट जिन्होंने दिए हैं, तो मालूम पड़ा कि 5 साल निकाल दिए इसी में। क्योंकि एक तो ये है कि this is one of the most difficult exams because selection is so, rate is so little. 0.12% भी नहीं होगा जो लोग सिलेक्ट होते हैं सिविल सर्विस में। आईएएस में भी 600, 125, 150 मैक्सिमम लोग सिलेक्ट होते हैं, एंड अबाउट 10 lakhs 12 lakhs जो है वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं प्रीलिम स्टेज पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दिस होल सिलेक्शन प्रोसेस इज। लेकिन ये है कि ये प्रिपरेशन ऐसा है कि ये चाहता है कि सिंगल माइंडेड फोकस। तो ये ऑल्टरनेटिव करियर जैसे अगर आपके पास हो, मैंने आपको बताया अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने भी प्राइवेट सेक्टर का जॉब अपना रिजाइन किया। तो इसीलिए रिजाइन किया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, एनी जॉब एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ यू। अगर आप करेंगे तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो मिनिमम या 7 बजे तक काम करना ही पड़ेगा, और काफी डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर बहुत कम टाइम बचता है कि आप बैठ के कुछ प्रिपरेशन करिए या कुछ करिए। तो वो साथ साथ दोनों चीज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समटाइम इट इज बेटर कि आप सबैटिकल ले सकें, अपने जॉब से सबैटिकल ले लीजिए, या अनपे लीव विदाउट पे ले लीजिए, या जो भी करके ले लीजिए। देन इसमें जो टाइम देना है 7-8 महीने का, वो तो सिंगल माइंडेड फोकस के साथ देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सफलता जो है या सक्सेस जो है वो नहीं मिलेगी। बट देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स इज, मान लीजिए एक बार नहीं हुआ, तो हाउ मेनी इयर्स शुड यू स्पेंड इन दिस प्रिपरेशन? सेकंड टाइम दे, थर्ड टाइम दे, ठीक है। एक बार नहीं हुआ तो आपको अपना असेसमेंट कर लेना चाहिए कि वेयर आई स्टैंड, एंड इट इज ऑनेस्ट असेसमेंट। और अगर लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत और फोकस्ड हार्ड वर्क में करूंगा तो आई कैन गेट सिलेक्टेड, तो जरूर सेकंड अटेम्प्ट भी ले लीजिए, थर्ड भी लेने को ले सकते हैं। बट देन बियॉन्ड अ पॉइंट, मेरा अपना अनुमान ये है कि 3 अटेम्प्ट्स शुड बी अबाउट द मैक्सिमम। इसके आगे कोशिश नहीं करनी चाहिए। देन अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो कोई दूसरे करियर में आप जाइए, अपना समय उसमें वेस्ट ना करिए प्रिपरेशन में। बिकॉज अननेसेसरी लगता है आदमी को ना, जैसे कि मैं एक बार और दे दूं तो शायद हो जाए, इस उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अदर एवेन्यूज ऑफ लाइफ जो है, एंड दे आल्सो गिव यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, तो उस तरफ जाना चाहिए। क्या पता कहाँ आप और अच्छा कर ले लाइफ में। यू माइट बिकम अ मच बेटर लॉयर, यू माइट बिकम मच बेटर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, और जैसे आप है बिकम मच बेटर कंसल्टेंट, एनीथिंग यू माइट बिकम, एनीथिंग कैन हैपन। सो ये नहीं है कि आईएएस इज द ओनली एवेन्यू, बट ये है कि हाँ 2 या 3 अटेम्प्ट तक आप दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय इसमें नहीं बर्बाद करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड जो है वो इसमें खत्म हो जाता है। से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जैसे आपने भी इनिशियली बोली कि कई बार होता है कि जो IAS as a service है, it offers you a lot of chakachon, the bodyguards and lot of service facilities, but career is more than this. अगर मैं शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, what is IAS as a service? Because आपको फील्ड पे भी रहना होता है, you have to be at the state headquarter as well. फील्ड नॉन फील्ड पोस्टिंग दोनों होती है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बताएं, what are the challenges and what are the opportunities this as a career offers? What it could be? देखिए आईएएस में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, जो मैंने पहले बात कही। अच्छा, आप जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सपोजिंग यू वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर, आप एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन कभी कभी यू माइट फील कि दिस इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके, एजुकेशन में हमारे क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, रूरल एरियाज के बच्चों को सही स्कूल्स नहीं दिखते, सही टीचर्स नहीं है, ऐसा ही मटेरियल डेवलप नहीं है, सो मेनी अदर चैलेंजेस आर देयर।
but then you can only comment on it if you're working somewhere else. But if you're in government, in the IAS, and you're working in the education sector, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उसके लिए सही पॉलिसीज बनाएं, how to take education to each and every household, how to give quality education to all, and then to get these policies implemented properly. सही तरीके से इनका implementation हो तो हर घर तक इसको पहुंच सके। और अगर आपने शिक्षा में सुधार लाए, लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाते हैं, तो कितना बड़ा ये एक अचीवमेंट हो जाता है सोसाइटी के लिए। तो ये आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज बहुत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हैं, डीएम बनते हैं, यू आर द कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप लीडर हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी टेस्ट होती है पूरी, बिकॉज आप एक तरीके से हर तरीके की स्कीम, हर चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कोर्ट वर्क हो, हर तरीके की चीज को आप देखते हैं एसडीएम, और आपकी पर्सनैलिटी से और आपके डायरेक्शन पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से चलती है। और सबसे देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जो मैंने अनुभव किया अपने करियर में, स्पेशली व्हेन आई वाज इन डिस्ट्रिक्ट्स, तो मैं फील्ड में बहुत जाता था, विलेजेस में जाता था, एक बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है। यू गो टू ईच एंड एवरी विलेज, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल इंडिया, जो कभी आपको, जैसे कभी हम लोग जैसे अर्बन एरियाज में रहते हैं, वी डोंट इवन नो कि रियल इंडिया क्या है, जिसे भारत कहते हैं, रियल इंडिया या भारत की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जब आप डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो आप जाते हैं, गाँव जाते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तो बहुत कुछ जानकारी मिलती है, जैसे बहुत कुछ आपको लगता है कि हाँ, ये करना चाहिए, जो इनके लाइफ को हम बेटर कर दें, ये सुधार ला सकते हैं, इस स्कीम को बेटर कर सकते हैं, इस तरीके से करप्शन को हम दूर करें तो बेटर रोड्स बन जाएंगी, बेटर इलेक्ट्रिसिटी हम इनको दे पाएंगे, बेटर और फैसिलिटीज इनको मिल जाएंगी। एंड इफ यू डू दैट, आप देखेंगे कि पब्लिक ऑल्सो हैज इमेंस फेथ इन यू। पब्लिक एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए कुछ करें, और विश्वास रखती है कि आप उनकी समस्याओं को हल करेंगे। और अगर आप ईमानदारी से और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी से काम करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो बहुत खुश होती है पब्लिक और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो मेरे अपने जीवन में सर्विस में मैंने ये पाया, सबसे ज्यादा संतोष यही मिलता है। मैं, एक तो होता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हर जगह है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, केआरपीज होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआईज होते हैं, केपीआईज के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन होता है। तो हमारे यहाँ भी होते हैं, केपीआईज होते हैं, सब होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आम नागरिक, द ऑर्डिनरी सिटीजन, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। अगर वो आपसे काम से खुश है, अगर वो समझता है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, और आपने वाकई मन लगा के पब्लिक के लिए काम किया है, तो आप बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन से मिलता है। मैंने तो अपने सर्विस में ये भी बड़ा ध्यान रखा था कि बहुत एक्सेसिबल हूँ। मैंने अपने और पब्लिक के बीच में कभी दूरी नहीं रखी, हमारा दरवाजा खुला रखा। किसी को मुझसे मिलना है तो मेरे चपरासी या पीए से टाइम लेके आने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे पास आ सकता है, मैं उससे मिल लूंगा। तो बल्कि मेरा ये वसूल था कि मैं अपने ऑफिस से किसी भी पोस्ट में, चीफ सेक्रेटरी तक में जब भी रहा, तब भी कभी उठता नहीं रहा जब तक मैं चेक नहीं कर लेता था कि भाई कोई आदमी बाहर वेट तो नहीं कर रहा है, इंतजार तो नहीं कर रहा है मिलने के लिए। अगर एक भी व्यक्ति वेट कर रहा है तो मैं उससे मिलने के बाद ही उठ के जाता था। तो ये, इससे ये फायदा होता है, एक तो आपको पता चलता है कि उन लोगों के क्या दुख दर्द है, क्या समस्याएं हैं, प्रशासन और शासन की नीतियों का क्या असली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसके बारे में जानकारी होती है। साथ साथ जो है, ये इमेंस फेथ जो उनका होता है, और आप उसको जब कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, तो वो भी बहुत प्रसन्न होकर जाता है आपके पास से, और आपको भी बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वो इससे मिलता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज है इस सर्विस में, तो ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है आईएएस का। और चैलेंज हर डे है, क्योंकि चैलेंज तो बहुत है, चैलेंजेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं, तो दिक्कतें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, हर जॉब में ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं, तो इसमें भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी अपॉर्चुनिटी बहुत है काम करने की। सर, जब हम एथिक्स, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, is it an individual virtue that comes from how it works in the paper, in the examination? Yes, you're right. It's a very good question you asked. I think to a large extent, ethics is individual. Yes, and it comes from inside you. Ethics is not outside, but ethics is inside you. Many people think, ये बात सामने आती है, जैसे इंटीग्रिटी की है, एथिक्स, उसकी बात भी सामने आई, तो कई लोग ये फील करते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी अच्छी नहीं होती है, या आईएएस की भी सैलरी अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर सैलरी बढ़ा दी जाए तो दे विल बिकम मोर ऑनेस्ट। इट इज पॉसिबल दैट दिस deprivation is there to some extent, and some people, sacrifice integrity for this reason. But ज्यादा एथिक्स की बात मनी से रिलेटेड नहीं है, या उससे मटेरियल उससे नहीं रिलेटेड है। इट इज योर इनर वॉइस, आपके अंदर क्या वैल्यू सिस्टम है, आपके अंदर क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, और आप उस हद तक उसको फॉलो करना चाहते हैं। और इंडिविजुअल का भी है, और व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विस लाइक द आईएएस और सिविल सर्विस इज सच,
उस सब में भी एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्वेंट का भी होता है। हर सर्विस को, लॉयर है, लॉयर का अलग एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर का अलग एथिकल कंडक्ट है। डॉक्टर हैज टू ट्रीट द पेशेंट नो मैटर हु द पेशेंट इज एंड नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द नाइट और डे इट इज। सिमिलरली फॉर द सिविल सर्वेंट, उसको ये नहीं देखना है कि जो मेरे सामने आदमी आया है वो कौन है, किस पॉलिटिकल पार्टी का है, किस कम्युनिटी का है, किस कास्ट का है, गरीब है या अमीर है। नो, ही हैज टू डू जस्टिस, ही हैज टू बी फेयर, ही हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। इस सब को ध्यान में रखते हुए उसको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका डेवलपमेंट कराना है। और अगर ये सब चीजें दिमाग में है तो एथिक्स एक इंडिविजुअल चीज भी है, एथिक्स एक सर्विस का भी एक एथिकल कंडक्ट सर्विस का भी है, जो उसको डिफाइन किया जाता है कौन क्या एथिक्स में क्या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। तो ये दोनों चीजें हैव टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट एथिक्स। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब पेपर 4 की बात आती है तो केस स्टडीज होते हैं, आपको सिचुएशंस दी रहती हैं एंड यू हैव टू राइट व्हाट वुड यू डू इन केस ऑफ सच अ सिचुएशन। How to develop this aptitude to deal with such case studies? Does it comes from the preparation? देखिए, इससे किताब में तो मैंने यही करा है, पहले कोशिश, पहले एथिक्स की थ्योरी पे पूरा वो दिया है और एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे उसमें भी रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करते हुए बताया है, सो दैट स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि एथिक्स का मतलब क्या है। तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स बेसिकली, और जब कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो आप उसको एथिकली कैसे डील करें। So for instance, if you take it modern usme now, and ethics does not mean only financial honesty. Let me be very clear with you. That is one aspect. More than that is your whole entire value system. जैसे कि उदाहरण के लिए मैं ले सकता हूँ gender sensitivity. Today, gender sensitivity by itself is a very big issue for civil servants, IAS officers, IPS officers, other. आज आप देखते हैं there is so much of issues about crime against women जो हो रहे हैं, और वो टीवी और मीडिया और हर जगह हाईलाइट होते हैं, become major political and media issues हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि somehow insensitivity दिखाई पड़ती है on the part of the government officers or the government in responding to this situation. They don't respond the way they should. तो ethics में क्या हो जाती है कि ऐसे issues जब आते हैं, then how sensitive are you to these gender issues? How sensitive are you कि हम zero tolerance होना चाहिए towards such kind of incidents, and how you respond to that? क्या आपके अंदर क्या empathy है, क्या compassion है, क्या understanding है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस स्टडीज में मैंने यही चीजें हाईलाइट करी हैं। तो जो केस स्टडीज अगर स्टूडेंट पढ़ेगा, एंड 100 ऑफ देम डिफरेंट काइंड ऑफ सच सिचुएशंस आई पुट फॉरवर्ड, डेफिनेटली एक एथिकल मेकअप उसके माइंड में आता है अबाउट वेरियस इश्यूज जो सामने आएंगे। तो उसको एक सोचने का मैंने एक तरीका उसको मैंने दिया है थ्रू दैट, तो ही विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। सो एक तरीके से एथिक्स उसके अंदर डेवलप भी होती है। इट इज सम एथिक्स अंदर से होती भी है, वॉइस ऑफ द कॉन्शियस है, एंड एथिक्स कैन बी डेवलप्ड आल्सो, एंड अ पर्सन कैन बी ट्रेन्ड आल्सो टू बिकम मोर एंड मोर एथिकल। तो ये इसी तरीके को मैंने दिमाग में रखते हुए मैंने इस किताब को लिखा है, so that when he finishes the book, some kind of an ethical background or base will be there with this student, and he will be any situation आप उसको दे दीजिए, immediately वो समझेगा कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है या कैसे इसके एथिकल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इसको मुझे रिजॉल्व करना है। So, 38 years of experience in bureaucracy, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे, बहुत सारे मेमोरेबल इंसिडेंट्स होंगे, something that you have carried till now that you remember it always? नहीं, देखिए बहुत इंसिडेंट्स हैं जिसको वन हैज टू वन रिमेंबर्स ऑलवेज। कई चीजें होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं जो आप कोई चीज लेके चलिए और उसमें आपको पब्लिक का सपोर्ट मिले एंड यू आर एबल टू इंप्लीमेंट, यू रिमेंबर ऑलवेज। फॉर इंस्टेंस मैं चीफ सेक्रेटरी रहा उत्तर प्रदेश का, तो उस जमाने में हमने लेस देन 2 years में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से बना के खड़ा किया, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू कंप्लीशन रिकॉर्ड टाइम में किया, और एक्सीलेंट रोड बनके तैयार हो गई, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया जिससे आगे का डेवलपमेंट होगा। बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। आई ऑलवेज रिमेंबर दैट। लखनऊ में मेट्रो लेके आए, वो भी 2 साल के अंदर लेके आए। डायल 100 हम लाए, पुलिस का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम was within 2.5 years we brought the system as the most advanced emergency response system जो है पुलिस का लाए। 108 एम्बुलेंस सेवा को लेके आए कि गांव-गांव तक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी within 20 minutes। तो ये तमाम ऐसी चीजें मिली, इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। डिस्ट्रिक्ट्स में रहे तो हम जैसे आगरा में था, लिटरेसी हमने करी। 15 to 45 year old जितने लोग जो लिटरेट नहीं थे, they were about 5.5 lakh people। हमने एक टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाई है एसडीएम ऑफ आगरा, और 1 साल के अंदर वॉलंटियर्स को यूज करके, गाँव के लड़के लड़कियों को एज वॉलंटियर यूज करके, बिना कोई पैसा दे के उनको केवल रिकग्निशन दिया और उनको कहा कि आप पढ़ाइए और मॉनिटर करिए, और करके इसके जरिए उन 5.5 लोगों को लिटरेट बनाया। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इवैल्यूएशन किया और कहाँ आई लिटरेसी इन तक पहुंची है। तो दीज आर सम ऑफ थिंग्स व्हिच वन रिमेंबर्स ऑलवेज कि हाँ हमने ये जो किया इससे ये इम्पैक्ट सोसाइटी में हुआ, ये हुआ। लेकिन इससे भी ऊपर जो याद रहता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है,
ये जो लोग आते हैं अपनी समस्या लेके और आप उसकी प्रॉब्लम को विद कंपैशन और एम्पैथी सुनिए, आधे से ज्यादा उसकी दुख दर्द दूर हो जाता है। एंड देन इफ यू एक्चुअली पॉजिटिवली ट्राई एंड हेल्प हिम एंड मदद करिए उसकी और सॉल्व कर दीजिए प्रॉब्लम, तो आपके लिए तो छोटी चीज हो सकती है एज एन ऑफिसर, उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। फॉर हिम इट माइट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम व्हिच यू हैव सॉल्व्ड, और वो उसको जिंदगी भर याद रखता है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी आपसे मैं शेयर करूंगा इस बात की हमेशा हुई कि मुझे रिटायर हुए 5-6 साल हो गए हैं, अभी भी जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में मैं डीएम रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं गाजीपुर का डीएम रहा था 1985 टू 1987। दैट मीन्स आई लेफ्ट गाजीपुर 35 years ago। 35 साल पहले मैंने गाजीपुर छोड़ दिया था। आज भी गाजीपुर के लोग मुझसे मिलने आते हैं और आके बताते हैं कि साहब आपने हमारे लिए ये काम किया था, आपने हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, या आपने ये मदद की थी हमारी। आई डोंट रिमेम्बर बट दे रिमेम्बर एंड दे कम एंड स्टिल थैंक, और मिलने आते हैं आफ्टर रिटायरमेंट व्हेन आई एम नॉट इन अ पोजीशन ऑफ पावर। उनको कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, लेकिन वो आते हैं। इससे बड़ा वो सेटिस्फेक्शन मिलता है और बड़ी खुशी जो है वो इससे मिलती है। तो ये चीजें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है याद करने की सर्विस में कि हाँ, हमने जो सर्विस करी है पब्लिक सर्विस, इट हैज बीन वर्थवाइल, कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया है। This question is out of curiosity as a layman's point of view. जो IAS officers होते हैं, they are posted in districts and then they come to different departments. You have had this experience and then finally to the position of Chief Secretary UP. How is the absorption of the different departments so easy? How does transition from one department to the other? And also, ऐसा होता है कि you do not spend a lot of time in that particular department, you're transferred. So you have to have knowledge of that department also for the decision and everything. So how is that transition? Yeah, that's a very good question you asked, and this many people ask that domain specialization नहीं होता है IAS officers का, and they move from one area to another very fast. पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि I think government as a policy should not shift officers too soon. And I feel that if you're posted to a particular department or on any post in the IAS or civil service, you should be given minimum of 2 years, if not 3 years मिलना चाहिए। तो आप 3 साल मिल जाए तो आप बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं। ये एक पहली चीज है। सेकेंडली ये कहना है कि ये जो आपने कहा कि एक से दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो कैसे उसको समझते हैं, ये एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू देन inculcate this habit of grasping the main thing, important things. ये एक आदत बन जाती है, एक एटीट्यूड बन जाता है एज अ लीडर। आप किसी डिपार्टमेंट में गए, आप इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंटरेक्ट विद द पीपल आउट देयर, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर से इंटरेक्ट करिए, पब्लिक से इंटरेक्ट करिए, वहाँ की पुरानी रिपोर्ट्स, वहाँ के पुराने कॉरेस्पॉन्डेंस सब पढ़िए, और उसमें इमीडिएटली ज्यादा देर नहीं लगती है एंड फॉर अ लीडर व्हेन यू आर एज एन आईएएस ऑफिसर टू अंडरस्टैंड कि क्या मेन इश्यूज हैं, क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं, किन पे काम करने की जरूरत है, उनको आप इमीडिएटली यू कैन लिस्ट आउट एंड वर्क। डोमेन नॉलेज के लिए देयर आर अदर पीपल देयर टू असिस्ट यू। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं जिनकी डोमेन नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हु कैन गिव यू द इनपुट ऑफ अ डोमेन नॉलेज। बट यू एज अ लीडर, आपके अंदर से फिर एक्सपेक्ट होता है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज को करें, एज यू एक्सपेक्ट ऑफ आप टीम बिल्ड करें, आप मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, आप डिसीजंस लें, आप कोऑर्डिनेशन करें। These are the qualities which are very much looked for in a leader, and that is what is expected of an IAS officer. तो इसके लिए उसके जो डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होती है या जिसमें वो काम करता है, these are the qualities which are developed in him through that experience. तो जब वो डिपार्टमेंट में आता है तो उसको यूज करता है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको एक शेयर करूंगा, अनलाइक व्हाट मेनी पीपल थिंक कि आईएएस ऑफिसर आते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगी चीज को, बट वेरी ऑफन दे न्यू इनोवेशन से क्रिएटिविटी जो आती है कई डिपार्टमेंट्स में, वो आईएएस ऑफिसर ही लाते हैं, बिकॉज दे कम विद अ फ्रेश अप्रोच। मैंने अपने अनुभव ये पाया है कि कभी कभी जो ऑफिसर्स बहुत सालों से एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल, वो कुछ थोड़ी थिंकिंग उनकी जो है वो रिजिड कहिए या फिक्स हो जाती है कि नहीं ये चीज ऐसे ही हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो नया इनोवेशन लाना या नया चेंज लाना, उसके लिए समटाइम्स बाहर से जब आईएएस ऑफिसर जाता है, ही इज मोर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट विद चेंज और ब्रिंग अबाउट इनोवेशन दैट एन एग्जिस्टिंग ऑफिसर। तो इससे कभी कभी बहुत अच्छा असर पड़ता है। दूसरा, जब वो बाहर से जाता है तो वो ऑफिस उस डिपार्टमेंट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है। आप जो डिपार्टमेंट होता है आप आमतौर पर पाएंगे वहां बहुत इनर पॉलिटिक्स होती है, ऑफिसर्स के ग्रुप्स होते हैं, वो आधे इधर हैं आधे उधर हैं, बट एन आईएएस ऑफिसर गोस, ही इज देयर फॉर 2 years, ही इज इम्पार्शियल, ही हैज नथिंग टू डू, ही हैज नो एक्स टू ग्राइंड, तो ही इज फेयर टुवर्ड्स एवरीबॉडी। तो कई डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स भी इस बात को महसूस करते हैं कि वो ज्यादा फेयरनेस हमको जो है डिसीजन मेकिंग में या हमारे काम को इवेल्युएट करने में आईएएस ऑफिसर द्वारा दी जाती है। एंड फाइनली मैं ये जो नॉलेज, डोमेन नॉलेज वाली बात है, इसमें कहना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली is different from when you talk of any other area of work.
यहाँ एक तो आपकी पीपल स्किल होनी चाहिए, dealing with people. This you develop while working in the districts and all, understanding the problems of the people, dealing with people. That is a very, very important skill. दूसरा, यहाँ किसी चीज की समस्या जो है वो actually it is not one way traffic. You have to bring in many things. Like अगर आप health को कोई चीज करना चाहते हैं, तो health के साथ you have to consider water, sanitation, nutrition, even education. They are all linked together. तो silos में काम नहीं करना है. अब silos में काम नहीं करना है. जब IAS ऑफिसर की जो ब्रॉड थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से एक ये फायदा भी मिल जाता है उसको, दैट इज थिंकिंग इज नॉट साइलो बेस्ड थिंकिंग. ही डज थिंक अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ही डज थिंक अक्रॉस इश्यूज, एंड देयरफॉर इस सबसे उसको लाभ भी मिलता है. तो ये सब चीजें पॉजिटिव साइड में है. एट द सेम टाइम ये मैं कहूंगा जरूर कि 2 से 3 साल देना चाहिए एक उसमें, और IAS ऑफिसर को कोशिश भी करनी चाहिए कि अगर कोई एरिया में वो अच्छा काम कर रहा है, then more postings in that area अगर उसको मिलती हैं, तो he will gain more experience, more knowledge and be able to contribute more. और दूसरा, IAS ऑफिसर कहीं पढ़ना छोड़ देते हैं, तो पढ़ना नहीं कभी छोड़ना चाहिए. You have to keep upgrading your knowledge, keep reading, keep knowing more and more things. The more you know, the better you'll be able to deliver. We are towards the end of the session, and we had a very insightful session about knowing IAS as a service, mainly about ethics, integrity, and how it must be inculcated in one's. तो कुछ एंड में आप सभी के लिए फाइनल टिप सजेशंस देना चाहेंगे? देखिए, मेरा सजेशन तो यही है कि सिविल सर्विस एंड IAS इज अ वेरी गुड करियर, वेरी सेटिस्फाइंग करियर. और जो भी अगर यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं who want to do something for society, who want to make a mark in public life, उनको जरूर इस करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए, अभी भी लोग सोचते हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा हो गया है कि आप काम नहीं कर पाते. नहीं, ऐसा नहीं है. आप काम कर सकते हैं. आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से बहुत काम कर सकते हैं. आप अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से भी काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको कोई ऐसी चीज रोकती है. ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट, कैश बेनिफिट इमीडिएटली उतना नहीं मिलता है एज कंपेयर टू अदर करियर्स, बट देयर इज अदर सेटिस्फैक्शन ऑल्सो जो आपको मिल जाएंगे जब आप इस सर्विस में आते हैं. और सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि टू डू समथिंग फॉर द पब्लिक, टू डू समथिंग फॉर द सिटीजन, टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं तो कहूंगा कि जिसका भी इस तरफ जरा सा भी इंटरेस्ट हो, उसको आना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए. बहुत सेटिस्फाइंग करियर रहा है, बहुत चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है काम करने को. एंड यू आर इन्वॉल्व विद डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें आप यू आर एक्चुअली एक्टिव प्लेयर. जो रोज हो रहा है डेवलपमेंट, यू आर एन एक्टिव प्लेयर, नॉट अ बाय स्टैंडर कि दूर खड़े होकर आप कमेंट कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, यू आर इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस. तो बहुत सेटिस्फाइंग है. इसके साथ साथ ये जरूर कहूंगा कि इंटेग्रिटी को बहुत ध्यान में रखना है, एथिक्स को बहुत ध्यान में रखना है. नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिक्स और इंटेग्रिटी. अगर आपने कभी शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो फिर यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट. आप कभी जो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे. लगेगा कि शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हुआ, पर लॉन्ग टर्म में जो है आगे चल के इसका फायदा नहीं मिल पाता है. तो मेहनत से काम करिए, एथिक्स इंटेग्रिटी से काम करिए, और जरूर ये सोच के काम करिए कि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस विद लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन. कि हर घर तक मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करूंगा, हर झोपड़ी तक मैं पहुंचना चाहता हूं, हर घर गांव तक मैं पहुंचना चाहता हूं. इफ दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग करियर, और इसके लिए आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए. Thank you so much, sir. And definitely, I guess your words will be taken care of by a lot of people who are preparing for the examination and a lot who are already into the services. It's a great message, and we wish you good health. And thank you so much for joining. And we'll be taking more of your advices, such sessions with you. Thank you. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.